Now today's topic is catalysis. Now a catalyst is a substance that alters the rate of a reaction without undergoing any permanent chemical change, and this phenomena is called catalysis. Right? And promoters are the substances that enhance the activity of a catalyst. Like in case of Haber's process for the manufacture of ammonia, molybdenum acts as a promoter for iron. This is nitrogen plus hydrogen give rise to ammonia in presence of iron and molybdenum. Iron is the catalyst and molybdenum is the promoter over here. Next is poisons. There are certain substances which are known as poisons that decrease the activity of a catalyst. तो ज़रूरत नहीं है कि वो कैटलिस्ट हमेशा इंक्रीज करेगा उसकी एक्टिविटी, बट देर आर सर्टन कैटलिस्ट ऑल्सो दैट डिक्रीज the activity. Those are called poisons. Now characteristics of a catalyst that we have already done in class 11, just to short recap. It is not consumed in a reaction. That means वापस मिल जाता है हमें after the reaction is over. It is recovered at the end of the reaction. It is required in very small quantities and generally increases the rate of the reaction, though there are certain catalysts also that decrease the rate of a reaction, and they do not affect the equilibrium of the reaction. Equilibrium में कोई effect नहीं होता. Why? We have already studied in class 11th in equilibrium chapter. Why does not affect the equilibrium of the reaction? Because they affect both the rates of the forward as well as the backward reaction to an equal extent. जितना rate forward reaction का बढ़ाएगा उतना ही rate वो backward reaction का भी बढ़ाएगा, right? तो इसलिए it does not affect the rate of the reaction. Then they lower the activation energy by providing a different mechanism for the reaction. अब different mechanism कैसे होगा? You see, suppose ये reaction हो रहा है, ये reactant है, ये इतना energy उनको minimum energy चाहिए activation energy, and then only they will form the products. तो इतनी एनर्जी उनके पास होनी चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट. अब कैटलिस्ट क्या करता है, पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब इतनी हो गई, वो डिप क्या डाउन हो गया इसका डिप, तो अब इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी हैविंग, तो इट विल ऑटोमेटिकली फटाफट से ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे प्रोडक्ट्स में. फॉर एग्जांपल एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ. सपोज ये रिएक्टेंट है तुम्हारे 10th क्लास के बच्चे और साइंस चाहिए. साइंस का क्राइटेरिया आप रखो 90%. तो 90% में कितने आएंगे? 2 3 4 5 स्टूडेंट्स. ओनली दे विल मेक द क्लास, साइंस क्लास. लेकिन अगर हम ये क्राइटेरिया कम कर दें, 90% की जगह वी से कि 60% बच्चों को साइंस मिलेगी, जिनका 60% स्कोर है, तो क्या होगा? मैक्सिमम बच्चे 60% में आ जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम विल कम एंड दे विल गेट साइंस. तो दिस इज द योर इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट. वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, so that most of the reactant they can form products. Now types of catalysts, there are two types of catalysts. Homogeneous catalysis, when the catalyst and the reactant both are in the same phase, it is said to be homogeneous. Example is SO2 plus O2 give rise to SO3. सब गैस स्टेट में, और जो कैटलिस्ट है that is also in a gaseous state. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, लिक्विड 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 लिक्विड, और ये भी लिक्विड स्टेट में है कैटलिस्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, दिस इज ऑल लिक्विड स्टेट, एंड योर कैटलिस्ट इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. में क्या होता है? इसमें द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स बोथ आर इन द डिफरेंट फेजेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल सेम रिएक्शन लेते हैं हम, SO2 गिव राइज टू SO3, बट यहाँ पर प्लेटिनम है. पहले हमने क्या लिया था? SO3 गिव राइज टू SO3 in presence of NO गैस. ये सब गैस थे, ये भी गैस था. नाउ SO2 गिव राइज टू SO3, ये दोनों गैस में है, बट योर कैटलिस्ट इज सॉलिड प्लैटिनम. दिस इज हेट्रोजिनस कैटलिस्ट. हेबर्स प्रोसेस भी तुम्हारा हेट्रोजिनस है. ऑल आर इन गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट योर दिस थिंग कौन है, कैटलिस्ट इज इन सॉलिड स्टेट. सो दिस इज हेट्रोजिनस कैटलिस्ट. अनदर एग्जाम्पल SO2 का सी, एक और है SO2 प्लस O2 गिव राइज टू SO3, बट इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड सॉलिड स्टेट में. तो अगेन दिस इज योर heterogeneous catalyst contact process. Now what is the mechanism of heterogeneous catalysis? It involves 5 steps.
डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस, पहले रिएक्टेंट सरफेस पे चला जाएगा कैटलिस्ट के, वहाँ पर जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस पे, फिर वहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, एक कंपाउंड इंटरमीडिएट बनाएगा ऑन द कैटलिस्ट इटसेल्फ बाय केमिकल रिएक्शन, एंड देन डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स उस पर सरफेस से अलग हो जाएंगे, एंड डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, और बिल्कुल सरफेस से अलग होके दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, एक्टिविटी होती है, एक होती है सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी। जैसे तुम काम कर रहे हो, ऑल एवरीबडी डज वर्क, नो, पढ़ाई सब करते हैं, ठीक है, अब कौन कितना इफेक्टिविटी से पढ़ता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट सब पढ़ते हैं, कॉपी खोल के किताब खोल के सब बैठेंगे, तो दैट इज़ द एक्टिविटी यू आर डूइंग, चाहे तुम्हें समझ में आए ना आए, राइट। So activity is the ability of the catalyst to increase the rate of a reaction is called activity, and it depends upon the strength of the chemabsorption. दूसरी चीज़ होती है selectivity. Another thing is selectivity. अब selectivity में क्या है? It is the ability of a catalyst to promote a reaction in a particular direction to form a particular product. As you all know, catalyst जो है हर कोई reaction, हर catalyst हर reaction को catalyze नहीं कर सकता। एक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट यू रिक्वायर। तो सिमिलरली अब काम तो सब पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन कोई टॉप हो रहा है और कोई फेल हो रहा है, दैट मीन्स सिलेक्टिव स्टडी नहीं है तुम्हारी, यू आर नॉट सिलेक्टिव। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करना इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी। अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट ओनली इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड नॉट फॉर ऑल द रिएक्शन। ये देखो, अब सेम रिएक्टेंट्स हैं, CO प्लस हाइड्रोजन, CO प्लस हाइड्रोजन, ऑल द केसेस, तीनों केसेस में रिएक्टेंट सेम, लेकिन तुमने कैटलिस्ट चेंज कर दिया तुमने, एंड बाय चेंजिंग कैटलिस्ट यू आर चेंजिंग द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, सब में प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। सिमिलरली इन दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम, कैटलिस्ट डिफरेंट कर दिया, तो व्हाट हैपेंस, प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। देन एक होता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और जियोलाइट्स, 11 में पढ़ा है तुमने जियोलाइट्स। What are zeolites? This is the catalyst reaction which depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and the product is called shape, क्योंकि shape के ऊपर depend करता है, right? So these are called zeolites and they are basically microporous aluminosilicates having a honeycomb-like structure, that is 3D network silicates होते हैं, in which some of the silicon atoms are replaced by aluminium, इसलिए इनको बोलते हैं हम aluminosilicates. Some of the silicon atoms are replaced by aluminum atoms. Reactants and products having suitable size can fit into these cavities or pores, and hence only such types of reaction can be catalyzed. Zeolites are widely used in petrochemical industries में for cracking of hydrocarbons and isomerization. ZSM5 is a very important synthetic zeolite used for formation of gasoline from alcohol by dehydrating alcohol so that a mixture of hydrocarbon is formed. Then enzymes as catalysts, हमारी बॉडी में भी कैटलिस्ट होते हैं जिनको नाम दिया हुआ है एंजाइम. So basically enzymes are what? These are biochemical catalysts which are produced by living plants and animals. They are actually protein molecules and these are highly specific in nature and their particular enzyme can catalyze only a particular reaction. For example, urease will catalyze only the hydrolysis of urea and no other compound. This is urea. Urea का water hydrolysis करेंगे, you will get this product. So only urease will do the catalysis of urea. No other enzyme can do this part. Mechanism of this enzyme activity is very very important. Bio students might be knowing all this, lock and key model. They will be knowing this better. लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, जैसे एक ही ताले की एक ही चाबी होती है, वैसे ही एक ही रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम बनता है. ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है ऑन इट्स सरफेस. अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन अ की यू मीन सबस्ट्रेट फिट्स इनटू दिस एक्टिव साइट, कौन सा लॉक है, लॉक जो है वो एक्टिव साइट है एंड की तुम्हारा सबस्ट्रेट. तो वो सबस्ट्रेट जो उसकी साइट में फिट हो जाता है, शेप उसकी ऐसी होती है कि वो उसके अंदर फिट हो जाए और उसको अनलॉक कर दे, तो केमिकल चेंजेस विल स्टार्ट बिगिनिंग, तो अनलॉक हो जाएंगे वो.
फॉर दिस इज योर एंजाइम, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, शेप नहीं, और ये सबस्ट्रेट है जिसको रिएक्शन करना है इसके साथ। एंजाइम को इसका रिएक्शन कराना है ना, तो सबस्ट्रेट का शेप इसके मैच होनी चाहिए। अच्छा, शेप मैच हो गया, इट विल फिट इनटू दिस, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहीं पर ही रिएक्शन हो जाएगा, इट विल ब्रेक अप इनटू प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स प्रोडक्ट्स, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। एंड फाइनली प्रोडक्ट्स विल गेट आउट ऑफ दिस and you will get back your enzyme with its active site. So this is called lock and key mechanism, that is very very important. Next category is, अभी तो adsorption चल रहा था, adsorption finish हो गया, then catalyst finish हो गया, then another surface phenomena is colloids. What are colloids? So colloids is a heterogeneous system in which one substance is dispersed as a very fine particles in another substance. अब इसमें टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है, अभी तक हम क्या कर रहे थे एड्जॉर्प्शन में, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट जो सब्सटेंस तुम डाल रहे हो, और एड्जॉर्बेंट जिसके अंदर डाल रहे हो। अब कोलॉइड्स में अगेन यू हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर तुम्हारे पास डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्स्ड फेस होता है जिसको डाल रहे हैं, एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है जिसके अंदर डाल रहे हैं, राइट? मतलब सॉल्वेंट बेसिकली इज योर डिस्पर्जन मीडियम एंड सॉल्यूट इज योर डिस्पर्स्ड फेज। सो जस्ट दिस टर्म्स थोड़े से डिफरेंट है। देन वी हैव ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। ये आप 9th क्लास में यू मस्ट हैव स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज। ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, you all are knowing all this. Just a short recap. अब पार्टिकल साइज में डिफरेंस होता है। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इन colloids it ranges from 1 to 100 nanometers, and suspension it is greater than 100 nanometers. Then particles are not filterable by ordinary filter paper or by ultra filter paper. वो फिल्टर नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल योर सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन, नो, यू कैन फिल्टर इट। फिल्टर करोगे तो यू विल गेट द सेम सोल्यूशन बैक. So these are not filterable by ordinary filter paper or by any ultra filter paper. Filterable only by ultra filter paper से ही filter होंगे, and these are filterable by both. Colloids means जो हमारा milk, और suspension means your muddy water, filter करोगे सारी mud ऊपर बैठ जाएगी filter paper पे, right? Then these are not visible by naked eyes. Why? Because the particle size is very very small, less than 1 nanometer. So these are not visible by naked eyes. This is visible through microscope only, right? And these are visible by naked eyes. Muddy water तो वैसे ही पता चल जाएगा. They do not show Tyndall effect. Tyndall effect we'll study अभी. Tyndall effect is for scattering of light by colloidal particles, that is which appears in the form of bluish cone. So they do not show Tyndall effect. क्यों नहीं show करते हैं? Because particle size is too small to scatter the light. स्कैटरिंग होनी ज़रूरी है टिंडॉल इफेक्ट के लिए, और स्कैटरिंग के लिए कुछ अप्रिशिएबल साइज होना चाहिए पार्टिकल्स का जो स्कैटर कर सके लाइट, बट बिकॉज इनका साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो दे आर अनेबल टू स्कैटर लाइट. तो दैट इज व्हाई डू नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट. दे शो टिंडॉल इफेक्ट एंड दे मे और मे नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट. इज अ मोस्ट स्टेबल. स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब ये है कि अगर आप सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें अनडिस्टर्ब्ड, देन द पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन. दैट इज स्टेबल. जैसे शुगर सोल्यूशन को इफ यू लीव इट, तो पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि चीनी नीचे बैठ जाएगी या नमक वाले पानी में नमक नीचे बैठ जाएगा, तो दैट मीन्स वो वैसे ही रहेगा. तो दिस इज मोस्ट स्टेबल. दीज आर मॉडरेटली स्टेबल एंड दीज आर लीस्ट स्टेबल. लीस्ट स्टेबल मतलब मडी वाटर को रख दोगे आप तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे तो मड विल सेटल डाउन, राइट? Example is solution of NaCl in water, milk, and suspension of mud particles. Now classification of colloids based on the following criteria: physical state of dispersed phase and dispersion medium, या nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. अब classify हम कैसे कर सकते हैं colloids को? फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारे, डेट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट. अब फिजिकल स्टेट मतलब तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम और फेज का क्या स्टेट है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ colloid सिस्टम. इसमें हमारा हम ले सकते हैं सॉलिड, व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज ऑल्सो सॉलिड. तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ हो गया तुम्हारा, इसको सॉलिड सोल एग्जाम्पल, ठीक है.
देन सिम्पली सॉलिड लिक्विड में ले सकते हैं, दीज आर कॉल्ड सोल्स, एग्जाम्पल्स आर देयर, सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस एंड सो ऑन. बट गैस इन गैस हम नहीं ले सकते colloid. Why? Gas in gas is not a colloid because mixture of gases is the homogeneous mixture, you know. तो वो solution की category में आ जाएगा. That will not come into colloids category, because mixture of air or more gases in air, it is a homogeneous mixture, so it is not a colloid. It will come under the solutions category, right? तो solution में आएगा. Now next is classification based upon the nature of the medium. अब कौन सा medium आप ले रहे हो? medium dispersion medium अगर water लेते हैं तो it is called alcohol और hydrosol, and dispersion medium अगर alcohol लेते हैं तो it is called alcohol, and dispersion medium अगर benzene लेते हैं तो it is called a benzazole. So classification next is you're based upon the nature of forces of interaction between dispersed phase and dispersion medium. This is most important, very very important. Generally या तो as it is question आएगा कि classify based upon the nature of forces of interaction between dispersion medium and dispersed phase, या directly आ जाएगा कि differentiate between lyophobic and lyophilic soil. ये इस साल आया था. This question was there this time. Differentiate between lyophobic and lyophilic colloids के बीच में कोई भी दो difference लिखने के लिए आते हैं. तो this chapter is very easy, straightforward questions आते हैं. तो number 1 lyophobic colloid and lyophilic colloid. Phobia का मतलब क्या होता है? डर. तो यहाँ lyophobic में क्या होता है कि dispersed phase does not have affinity for the dispersion medium. मतलब solvent repelling है, उसको phobia है, वो solvent के पास नहीं आएगा. डिस्पर्स्ड फेज जो है डिस्पर्जन मीडियम के पास नहीं आना चाहता, तो सॉल्वेंट रिपेलिंग है. इसमें क्या होता है उल्टा, फिलिक मीन्स अट्रैक्ट करता है. द डिस्पर्स्ड फेज हैज़ गॉट एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम. दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मेथड्स. क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हो आप? क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते पास में उसके. दे आर सॉल्वेंट रिपेलिंग, वो दूर भाग जाएंगे. जैसे मैग्नेट होते हैं ना, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो कैसे लाओगे आप पास? तो दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्ट मेथड से, नहीं इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे. they can be prepared by direct methods. They are not stable. Stable क्यों नहीं है? क्योंकि जब पास आएंगे नहीं और रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो stable कैसे होंगे? So these are not stable and they can be coagulated in presence of even a small amount of an electrolyte. थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा इनको स्टेबल करने के लिए, खुद से वो स्टेबल नहीं होते हैं. दे आर स्टेबल एंड इन देयर प्रेजेंस दे स्टेबलाइज लायोफोबिक सोल्स ऑल्सो. ये खुद तो स्टेबल है ही हैं, थोड़ा सा अगर इनको डाल देंगे लायोफोबिक में तो लायोफोबिक को भी स्टेबलाइज कर देंगे. देन दीज आर इरिवर्सिबल सोल्स. क्यों इरिवर्सिबल? क्योंकि पहले तो ये बनेंगे ही बहुत मुश्किल से, डायरेक्टली मेथड से नहीं बनेंगे, और बनने के बाद अगर आप चाहो कि इसको रिवर्स कर दो वापस तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. So they are irreversible. Once precipitated, they do not give back the colloidal soil by the addition of a dispersion medium. And they are reversible soil. A dispersion medium can be separated from the dispersed phase by evaporation. The soil can be reformed or reconstituted by simple remixing them with a dispersion medium. Example: metal sulfides, metal hydroxides, and so on. And यहाँ पर organic substance है, जैसे प्रोटीन्स है, स्टार्च है, रबर है, गम्स है. ऑल दीज आर. देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज फोर्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज. अब जो डिस्पर्स्ड फेज जो डाल रहे हो तुम, सॉल्यूट डाल रहे हो, उसके पार्टिकल किस टाइप्स के हैं, तो डैट डिपेंड्स उसके तरह हिसाब से. मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसेस. Now starting with multi-molecular colloids, as the name suggests, multi का मतलब बहुत सारे molecules combine करके ये colloid बनाएंगे. A large number of smaller molecules they aggregate together to form species of colloidal size. That means colloidal size मतलब छोटे छोटे molecules they come together and वो एक molecule बनाएंगे जिसका size colloidal range में आता है. Colloidal range में size should be less than 1 nanometer. ठीक है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे जिसका साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. एंड दिस टाइप ऑफ कोलॉइड इज कॉल्ड अ मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड. एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सोल्ट. जैसे गोल्ड सोल्ट बनाया, सल्फर सोल्ट बनाया. सल्फर सोल्ट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कंटेनिंग
many number of acid molecules. बहुत सारे acid rings combines करेंगे and then only you will be able to form sulfur sol. Then you have macromolecular colloids. Name suggests एक बड़ा molecule लेंगे आप. Macromolecule means very big molecule. और उसको तोड़ेंगे so that every molecule smaller particles comes into the colloidal range. Macromolecules have large molecular masses which can dissolution in a suitable solvent forms a solution in which the size of the macromolecules comes in colloidal range, that means the diameter less than 1 nanometer. Such types of systems are called macromolecular colloids, and these are quite stable and resemble true solution in many respects. That means true solution के जैसे behave करते हैं. Example is your naturally occurring macromolecules जितने भी हैं, starch, cellulose, proteins, enzymes, all these are macromolecular colloids. Example of man-made macromolecules भी हैं. Man-made वो तो natural macromolecules है, and man-made macromolecules polythene, nylon, जितने भी polymers study करते हैं, all these are man-made. And third category is your associated colloids or micelles बोल सकते हैं. These are the some substances which at low concentration, mind it, जब low concentration होती है they behave as normal strong electrolytes, but at higher concentration they exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates known as micelles or associated colloids भी बोलते हैं. इसमें सारे soaps and detergent इस category में आते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन में तो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बिहेव करते हैं, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन दे हैव कोलॉइडल बिहेवियर. द फॉर्मेशन ऑफ मिसेस टेक्स प्लेस ओनली अबव अ सर्टेन पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज नोन एज द क्राफ्ट टेम्परेचर. इस टेम्परेचर के अबव ही मिसेस बनेंगी, एंड अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसेस कॉन्सेंट्रेशन CMC. On dilution these colloids they convert back to their ions. वापस ions में चले जाएंगे. Examples are soaps and detergents. तो straight forward question आता है कि classify the colloids on the basis of their size of the dispersed phase, right? Now mechanism of micelle formation everybody knows. Soap is a sodium salt of higher fatty acids and it is represented as ionic part and non-ionic part. Two parts होते हैं उसके. Hydrophobic part is water repelling part होता है, and hydrophilic part is your water attracting part. You see water जो repelling होता है वो water से दूर भाग गया, ये water से दूर भाग गया, अंदर की तरफ आ गया ना, और जो water attracting है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, पानी की तरफ. ठीक है, तो this is hydrophobic part inside facing inside. This is a long hydrocarbon chain है, this is hydrophobic. ठीक है, so hydrophobic group it points inwards whereas hydrophilic group point outwards. Micelles क्या करते हैं, ये micelle है. This is aggregate of the so many soap molecules is called a micelle. Micelles they trap the dirt particle or grease particles. जब कोई dirty कपड़ा डालते हो soap में what happens, पहले तो ये micelle बनेगा उसमें, and then वो dirt को अंदर इसको घेराबंदी कर देंगे उसको चारों तरफ से. dirt particle को grease particle they trap. ठीक है, एंड व्हेन दे आर एजुटेटेड, जो हम जोर से मसलते हैं कपड़े को धोने के लिए, तो मिसल्स अलॉन्ग विद दिस डर्ट पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम द क्लॉथ, वो बाहर निकल के आ जाती हैं, और फिर जब पानी में रिंस करते हैं तो वो पानी में रह जाते हैं सारा डर्ट पार्टिकल्स. मिसल्स अलॉन्ग विद द डर्ट पार्टिकल्स दे रिमेन इन द वाटर एंड योर क्लॉथ बिकम्स क्लीन. सो दिस इज बेसिकली द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सेम है दोनों के लिए. डिटर्जेंट्स क्या होता है, दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, राइट, और वो क्या थे सोप्स, दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स. ये तुम्हारा डिटर्जेंट्स का है, सेम चीज़ है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स केमिकल मेथड से कर सकते हो. केमिकल मेथड में क्या क्या आता है सब, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस एंड सो ऑन. तो ये दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द colloids. Next is electrical disintegration method or Bridges arc method. इसमें both dispersion and the condensation methods are used. Colloidal source किसी की भी ले सकते हो by striking an arc between the two electrodes, और arc जब strike करोगे तो गर्म हो जाएगा और intense heat जो produce हो जाएगी that vaporizes the metal, vapor state में चला जाएगा, and when then it condenses back to form the particles in colloidal side में वापस आ जाएगा. So this is called bridge arc method. Then you have peptidation. Peptidation
It is the process of converting a freshly formed precipitate into the colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. Very, very important. This is a new term that you are going to come across. No, basically it is a method of preparation of सोल. पहले एक पीपीटी बना लेंगे. सपोज फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपको सोल बनाना है, तो पहले उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बना लो. उसको फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, फिर उसको शेक करते हैं विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एक इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डालेंगे, एंड द इलेक्ट्रोलाइट एडेड इज कॉल्ड अ पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसके बिना पेप्टाइजेशन नहीं होगा और सोल नहीं बनेगा. तो यू हैव टू ऐड एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स पेप्टाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है पेप्टाइजेशन कराने के लिए. ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट, जो तुम्हारा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल सपोज बनाया हमने, वो प्रेसिपिटेट adsorbs one of the ions of the electrolyte. जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला उसका एक आयन अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगा. ऑन इट सरफेस द एड्जॉर्ब्ड आयन इज कॉमन ईदर विद द एनायन और कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. वो द एड्जॉर्ब्ड आयन, and this is the cause for the development of the positive or the negative charge on the precipitate, which ultimately breaks into smaller particles of the size of the colloid, right? तो बेसिकली अब क्या होता है इसमें, व्हेन यू एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बना लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. अब एक इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद उसमें से जो कॉमन आयन है, सपोज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनाया आपने, and ferric chloride is the electrolyte that you have added. अब which is the common ion? Ferric hydroxide और ferric chloride में ferric ions are common. So ferric hydroxide sol will absorb the ferric ions on its surface. और ferric ion is positively charged. That means वो sol positive charge हो जाएगी. That will become positively charged. So this is basically the cause for the charge on the ion. So question can also be asked, how do colloids develop charge on themselves? ठीक है, उनमें चार्ज कैसे डेवलप होता है? तो दिस इज द रीज़न वाइल पेप्टाइजेशन, जब पेप्टाइजेशन होता है तो इट एड्जॉर्ब्स द आयन दैट इज कॉमन टू इट. तो दैट डेवलप्स इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द आयन इट एड्जॉर्ब्स. एग्जाम्पल वही फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एंड मैकेनिज्म इज when the freshly prepared PPT of ferric hydroxide is shaken with ferric chloride solution, ferric ions are adsorbed and thereby breaks up into small size particles. In this way, charge develops on the colloid. Next is purification of colloids. How do we purify these colloids? Because बना तो लिया by different methods, but these colloids may not be pure. So there are different methods to purify colloids. And कैसे करेंगे? There are different methods.